So we are starting with the basics of accounting. Basically, what do you mean by accounting? When we are talking about accounting, so what was the need of accounting first of all? So basically, when we think about ourselves, हम लोग के लाइफ में बेसिकली 2 ट्रांजेक्शन 3 ट्रांजेक्शन मैक्सिमम एक डे में होता है, एंड these 1 or 2 transactions are easy to remember for a week. But अगर यही चीज for one particular year, if we are told to remember all the transactions, is it so we will be in a position to remember each and every transaction? No, sir. And if after 5 years, if you are being asked about any kind of expenditure or any time of expenses or incomes which you have earned, to explain about the source and the nature, will you be in a position to explain about that? No, sir. We will not be in a position, because human memory basically can't store data infinitely. बेसिकली वो चेंज होते जाएगा, रिप्लेसेबल होता है. हमारे यहाँ पे मेमोरी रिप्लेस हो जाती है. प्रीवियस थिंग्स वी फॉरगेट, न्यू थिंग्स वी रिमेंबर बेसिकली. So to remember all these things, the nature of income, nature of expenses, or the sources of income, we basically need to record them at a particular place. And for recording them, there has to be a systematic basis. If everyone adopts a different way of recording their incomes, expenses, and sources and everything, in that case, it will become a total chaos for anyone to understand and to compare. Yes or no? So basically, we needed a systematic way of recording the transactions. Now, अभी हम लोग अपने बारे में बात करें, we are thinking about ourselves, जिनका 1 या 2 ट्रांजेक्शंस रोज का होता है. बट जिन लोगों का, कंपनीज का, बड़ी बड़ी शॉप्स का अगर आप बात करें तो रोज का थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस भी हो जाते हैं. तो उनके लिए तो सर रिमेंबर करना पॉसिबल भी नहीं है. तो बेसिकली दे आर इन मोर नीड. द बिगर द ऑर्गेनाइजेशन, द मोर द नीड ऑफ द अकाउंटिंग. तो वी नीड basically proper books of accounts where we can record all the transactions. Now, recording is not the only thing which is important. We need to record, we need to classify, we need to summarize it, we need to analyze it, we need to interpret it, and we need to communicate it. All the things we need to take care of. So for all these things, we basically needed a systematic way of recording the transactions. Now, for this particular thing, we came up with an idea of double entry system. Double entry system of recording the transactions. Sir, basically there are 2 systems of recording the transactions. One is the single entry system and the other is the double entry system. Single entry system is basically incomplete recording of transactions. मतलब हम लोग के पास पैसा आया, हम लोग लिख लिए पैसा आया, पैसा गया, हम लोग ये लिख दिए गया. कहाँ से आया, कितना आया, किस चीज के लिए लगा, ये सारा चीज का हम लोग सर रिकॉर्डिंग और उसका पूरा डिटेल मेंटेन नहीं कर रहे. तब उस सिचुएशन में आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर 2 years, 3 years और एट द ईयर एंड इटसेल्फ, वी विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू बेसिकली एक्चुअली कैलकुलेट कि व्हाट इज अवर प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बिजनेस और दिस पर्टिकुलर वेंचर. So basically double entry system is much better. It's scientifically, systematically it is operating. Secondly, I am telling you transaction. So what do you mean by transactions? Basically there are 2 things which we need to understand first. One is the event and the other is the transactions. We say every transaction is an event. Every transaction is an event, but every event is not an transaction. Sir, matlab, what do you mean by this? Basically events are something, whenever anything happens, कोई भी चीज चेंज हो रहा है, any happening is basically an event. Any happening. हम लोगों ने एक बंदे को स्टाफ रखा, वी अपॉइंटेड मिस्टर एक्स एज अवर स्टाफ. क्या इसके चलते कोई भी तरीके का फाइनेंशियल
इन्वॉल्व हो रहा है? क्या मेरा पैसा आ रहा है? क्या मेरा पैसा जा रहा है? नो सर। तो इन दैट केस इट बिकम्स अ इवेंट। अब यही चीज आई पेड सैलरी टू द स्टाफ, क्या अब इसमें पैसा इन्वॉल्व है? यस और नो? यस सर, इसमें पैसा इन्वॉल्व है। तो जिस चीज को सर वी कैन मेजर इन मनी टर्म्स, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं मनी में, वो हमारा ट्रांजैक्शन हो जाता है। एंड एनीथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स विल बी ट्रीटेड एज प्योर इवेंट। इवेंट्स बेसिकली दो टेस्ट, जो हो रहा है वो सब इवेंट है। एनी हैपनिंग, एनी चेंज इज बेसिकली एन इवेंट, बट any event which has got a financial aspect, a financial amount is involved, in that case it will qualify as transaction. And we are only going to record transactions in our books of accounts. We only record transactions in our books of accounts. Now closing stock, अब चीज को ढंग से समझो। Closing stock, what do you mean by closing stock? Sir, after selling all the goods and everything, last में जो stock हमारे यहाँ पे बच जाता है, the leftover of the stock is known as closing stock. Suppose हम लोग वड़ा पाव बेचते हैं, we sell वड़ा पाव, and I have made total 100 वड़ा पाव today. Out of that 85 have been sold. So if I ask what is my closing stock of vada pav, you can tell, sir, we have got 15 left over. Balance कितना बचा? 15. तो this becomes my closing stock. Now ये कैलकुलेशन करना कि क्लोजिंग स्टॉक 15 यूनिट्स है, क्या इसमें कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट है? तो बेसिकली इट इज एन इवेंट, ये बता रहा है। बट इसका वैल्यूएशन, एक वड़ा पाव 100 रुपीज का एज्यूम करो, तो दिस बिकम्स 1500 रुपीज। तो दिस कैन बी मेजर्ड इन रुपी टर्म्स। तो दिस बिकम्स एन इवेंट एज वेल एज ट्रांजैक्शन। ये इवेंट भी है, ये ट्रांजैक्शन भी है, और इसको हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसको हम लोग को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेना पड़ता है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो दिस इज व्हाट। नाउ कमिंग टू अकाउंटिंग, when we come across accounting, accounting is basically the art of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the results, basically the financial results and financial position of the organization or the entity, you can say. This is basically accounting. It is the art of recording. जैसे ही कोई transaction हुआ, basically we record it in the books of original entry, basically. So we record all transactions in the book that is called journal. हम लोग सबसे पहले उसमें अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं। हाउ वी रिकॉर्ड, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉर्ड द एंट्री इन जर्नल. वी मेक अ नोट ऑफ दिस एंट्री इन आवर जर्नल बाय डेबिट एंड क्रेडिट. अगेन आई हैव वर्ड यूज डेबिट एंड क्रेडिट. हाउ टू डिसाइड डेबिट, हाउ टू डिसाइड क्रेडिट, what are the various accounts involved, everything we will come later on. And we also give a brief description about the entry. Brief description is known as the narration, कि ये क्या चीज का entry हो रहा है, कि later on if at all if there is any kind of problem, after seeing the journal and the note,
or the narration which we write below that particular entry, we will be in a position to understand कि actually ये क्या चीज का हुआ था. तो first of all we record the transactions, then we classify them. Classify them means basically we prepare the ledger. हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं. अब मिस्टर एक्स से रिलेटेड अगर 10 ट्रांजेक्शंस हैं तो बेसिकली ऑल 10 ट्रांजेक्शंस मस्ट हैव हैपेंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. तो अगर एक ही बार में मेरे को पता करना हो कि हाउ मच अमाउंट आई नीड टू रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स और टू पे हिम, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द एंटायर जर्नल फॉर 365 days, आई विल गो टू द लेजर ऑफ मिस्टर एक्स, आई विल ओपन इट और वहां पे मेरे को एक साथ उसका सारा डिटेल मिल जाएगा. तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू बेसिकली सर्च की हाउ मच अमाउंट आई हैव स्पेंड फॉर टी और स्नैक्स और फर्नीचर और परचेजेस और सेल्स वॉट एवर. तो जिस जिस कैटेगरी से रिलेटेड मेरा ज्यादा खर्चा हुआ है और किस किस दिन हुआ है, वो सारा चीज का डिटेल एक बार में मेरे को कौन बता देगा सर? लेजर बता देगा. तो बेसिकली जर्नल में जितना ट्रांजैक्शन होते जा रहा है रिकॉर्ड करते जाओ इन क्रोनोलॉजिकल मैनर. क्रोनोलॉजिकल मतलब सर इन द ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस. फर्स्ट को हुआ तो फर्स्ट की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी, सेकंड को फिर जो हुआ उसकी सारी एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी. तो वी बेसिकली डू इट लाइक दिस. लेजर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वी बेसिकली लेजर इट्स बेसिकली ओपनिंग सेपरेट अकाउंट्स. हम लोग सेपरेटली सबको शिफ्ट करते जाएंगे. फर्नीचर से रिलेटेड जितना खर्चा होगा उसको फर्नीचर में डाल देंगे. तो 1 तारीख का जितना हुआ, 2 को, 3 को, जब जब होगा वी विल बेसिकली ट्रांसफर इट. तो इन दैट वी बाय दिस बेसिकली इज द लेजर. द थर्ड, बेसिकली आफ्टर प्रिपेयरिंग द लेजर, इट इज नॉट द प्रोसेस बट वी ऑल्सो प्रिपेयर दिस थिंग, ट्रायल बैलेंस. After preparing the ledger, we basically prepare a trial balance. Trial balance is basically to check the arithmetical accuracy. Arithmetical accuracy of the recording of transactions of the basically जितना भी अभी तक रिकॉर्ड किए उसमें कोई भी अमाउंट गलत तो नहीं लिख दिए, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई. उन चीजों को चेक करने के लिए बेसिकली वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस. इफ द ट्रायल बैलेंस टैलीज मतलब उसका दोनों डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाता है, तो बेसिकली वी से कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर करेक्टली प्रिपेयर्ड. बेसिकली वी से इट्स नॉट कि 100% एक्यूरेट होगा. देयर कैन बी सर्टेन एरर्स व्हिच व्हेन वी विल कम टू द ट्रायल बैलेंस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट दैट. राइट नाउ आपको ये समझना है कि आफ्टर रिकॉर्डिंग इन जर्नल वी प्रिपेयर अ लेजर एंड आफ्टर द लेजर पार्ट इज ओवर, after 3 months or 6 months or after at the year end we prepare a basically trial balance to check the arithmetical accuracy of the books of accounts. If there is any kind of error or while recording the transactions or while posting them, I have recorded certain wrong amounts in that or I have done some wrong totaling, the trial balance will not agree. As soon as we come to know that it is not agreeing, we can understand there are certain errors. तो वी कैन गो बैक एंड वी कैन चेक द वेरियस ट्रांजेक्शंस. तो उससे हम लोग रेगुलर बेसिस पे चेक करके देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है. तो वी डू दिस ट्रायल बैलेंस. देन कम्स नाउ ये जो 3 पार्ट हमने आपको बोला, दिस 3 पार्ट इज बेसिकली कवर्ड अंडर बुक कीपिंग. पीपल हु बेसिकली आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, दे डू this in a subject called bookkeeping, journal, ledger and trial balance. It is basically keeping the books of accounts. How to keep the books of accounts? This is what. Now, after preparation of trial balance, now we have done 2 stages. Recording, we have done classifying. Now we are going to basically summarize. Summarize in the sense, now summarizing, fourth. Summarizing is basically taking the totals of the various ledger accounts we have opened. This can be done through trial balance. Now instead of opening every ledger account or ledger basically
keep on checking the ledger pages by pages, we basically prepare a trial balance. It helps us in preparing the trading account, a profit and loss account, and a balance sheet basically. And in some companies, there is a requirement to prepare a cash flow statement. ये सारा काम सर समराइजिंग स्टेज में होता है, स्टेज में. दे से ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ समराइजिंग. यस सर, इट इज ऑल्सो, बिकॉज हम लोग हर लेजर का टोटल को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं. तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस में भी समरी लिखी जाती है. एंड बाय दैट पर्टिकुलर समरी वी बेसिकली प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. From this trading and profit and loss account, we come to know about the profit of the business, net profit or net loss. Now, this net profit or net loss in accounting terms is known as financial result. What is basically the result of this particular accounting period? Whether we have earned a profit or whether we have incurred a loss. We come to know about this particular part from here. The balance sheet basically gives us the financial position of the business. हम लोग को business का financial position बताता है. Sir, how come we come to know about the financial position? Basically, balance sheet gives us the details about the fixed assets, the current assets, and all the liabilities of the business. Now the liabilities are also divided into two parts. Basically, the capital, that is the owner's contribution towards business, and other outside liabilities, जो हम लोग बाहर वालों से लोन लेते हैं. इसको ना, क्योंकि अब हमने एसेट, करंट एसेट, कैपिटल, आउटसाइड लायबिलिटीज टर्म्स को यूज कर दिया है, तो बेसिकली आई नीड टू डिफाइन देम कि व्हाट आर दीज. नाउ चीज को समझो. एसेट बेसिकली गिव्स अस अ राइट, इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी यू कैन से, और इट बेसिकली हेल्प्स us in production or earning revenues. Asset हम लोग को एक right देता है either to receive money, or it gives us an opportunity or helps us in production or earning revenues. Fixed assets and current assets are two types of assets. Fixed assets, basically those assets which help in revenue generation for more than a year. It helps in revenue generation or helps in a production for a period exceeding 1 year or 12 months you can say. तो उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोल देते हैं. So suppose you have bought a plant and machinery. आपने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया. नाउ दिस प्लांट एंड मशीनरी इज गोइंग टू हेल्प इन द प्रोडक्शन, यस और नो? यस सर, इट विल हेल्प अस इन प्रोडक्शन. क्योंकि ये मेरे को प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, तो डेफिनेटली दैट प्रोडक्शन, द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड विल बी सोल्ड इन द मार्केट, एंड सिंस इट विल बी सोल्ड इन द मार्केट, तो इट विल हेल्प मी इन अर्निंग द रेवेन्यूज. तो इन दैट केस दिस इज एन एसेट. नाउ is it so that the life of the plant and machinery is less than 1 year, or it can be in years? It can be 5 years, it can be 10 years, it can be 4 years, anything. So since the life is greater than 1 year, it is going to help me in the long run. तो जो चीज मेरे को लॉन्ग रन में हेल्प करती है ग्रेटर देन 1 ईयर, इन दैट केस इट बिकम्स आवर फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स, उसको हम लोग सर फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं. क्लियर है ये चीज? पक्का सर? एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? नाउ इन द सेम वे देयर इज अ नेम कॉल्ड
डेटर्स, एसेट कॉल्ड डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझना। डेटर्स बेसिकली व्हेनेवर वी मेक अ क्रेडिट सेल, द अमाउंट which is yes, it comes under the assets part only, but it is current asset. You will come to know about it right now. The amount which is still due, just a second, which is still due from the customer, जिन लोगों को हमने सेल किया है उनसे अभी भी हमारा कुछ पैसा बाकी रह गया है, तो बेसिकली इट बिकम्स अवर डेटर। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन लोगों से हम लोगों को रुपया लेना है, वी नीड टू रिसीव मनी, इसीलिए इनको रिसीवेबल्स भी बोला जाता है। वी से देम एज रिसीवेबल्स सिंस इट बिलोंग्स टू सेल ऑफ गुड्स क्राइटेरिया। मतलब जिस चीज में आप ट्रेड करते हैं, जो चीज में आप डील करते हैं, उस चीजों का पैसा बाकी है लेना, तो इट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स। मतलब सर अगर हमने एक फिक्स्ड एसेट को बेचा है और अभी उसका पैसा मिलना बाकी है, तो डेट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ट्रेड रिसीवेबल, बिकॉज फिक्स्ड एसेट हमारा गुड्स नहीं है। हम जिस चीज में डील करते हैं, जो ट्रेड करते हैं जिस प्रोडक्ट में, उसको हम लोग सर बोलते हैं रेवेन्यू, अपना ऑपरेटिंग इनकम। सपोज करिए वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली गणेश आटा या आईटीसी का आटा। तो आईटीसी के लिए आटा क्या है? गुड्स है, जिसमें वो ट्रेड करता है, उसको बेचता है। तो आईटीसी ने जिनको आटा बेचा होगा, सिगरेट्स बेचा होगा, तो ये इसका गुड्स है, और अगर उनसे उसको रुपया नहीं मिला अभी तक, तो वो उनको किस में दिखाएगा? ट्रेड रिसीवेबल्स में। करेक्ट है। नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स, इट गिव्स मी द राइट टू रिकवर द मनी फ्रॉम देम, यस और नो, इनसे हमको रुपया मिलेगा इन फ्यूचर। और एक नॉर्मल चीज याद रखिए, एसेट इज समथिंग विच गिव्स अस हैप्पीनेस, इससे हमेशा खुशी होगा। अगर कोई चीज से आपको तकलीफ हो तो वो एसेट नहीं हो सकता। लोन, वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक, सर वी विल हैव टू मेक द पेमेंट, यस और नो। पैसा देते हुए अच्छा लगता है? नो। लोन वाले आदमी से मिलने में अच्छा लगता है? नो। इट बिकम्स अ लायबिलिटी, इट इज बेसिकली एन ऑब्लिगेशन, हम लोग को पेमेंट करना होगा। दैट इज व्हाट लायबिलिटी इज ऑल अबाउट। समझ गए? तो ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल्स। नाउ एक चीज बताइए, इज इट सो द ट्रेड रिसीवेबल्स विल स्टे लाइक दिस इन द बिजनेस? सपोज मिस्टर एक्स से हम लोगों को 3000 रुपीज लेना है, हमने सेल किया था, तो क्या ये बंदा मेरे को 5 साल बाद देगा? और ही विल मेक द पेमेंट एनी टाइम सून, क्योंकि ये सेल है, रेगुलर बेसिस पे सेल होता है, तो ये फिगर रेगुलर बेसिस पे चेंज होगा, यस और नो। क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे चेंज होगा, तो इट बिकम माई करंट एसेट्स, इट बिकम्स माई करंट एसेट्स। एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? चीज क्लियर है? इसी तरीके से इन्वेंट्रीज, when I am writing inventory, basically I am talking about stock. Now stock is your fixed asset or current asset? सबसे पहले तो स्टॉक है, इसको बेच के पैसा आएगा, यस और नो, तो रुपया आएगा, तो अगेन इट बिकम्स अ रेवेन्यू जनरेटिंग थिंग, तो इट विल बी क्लासिफाइड एज एसेट। नाउ अब ये क्या चेंज होगा? विल इट चेंज सून और इट विल चेंज एवरी डे? यस सर, इट विल चेंज एवरी डे। हर दिन कुछ प्रोडक्ट बिकेगा, कुछ आएगा, कुछ जाएगा, यस और नो। तो इट चेंजेस बेसिकली एवरी डे, बेसिकली। तो इट इन दैट केस इट बिकम्स अवर करंट एसेट। करेक्ट? नाउ योर कैश इन हैंड, सर हमारे पास जो कैश है हाथ में, इज इट एसेट और लायबिलिटी? अगेन इट इज एन एसेट। ये हमको हेल्प करेगा चीजों को परचेस करने में,
हमारा एसेट है, यस और नो? इन दैट केस अब ये बताइए, इज इट अ करंट एसेट और अ फिक्स्ड एसेट? सर कैश विल चेंज एनी मोमेंट, तो इट इज अ current asset. Any problem with this thing? Any issue? Again, cash at bank, हमारा बैंक बैलेंस, ठीक है, तुरंत तुरंत चेंज नहीं होगा, बट विद इन अ वीक, विद इन 2 days, विद इन 3 days चेंज होता है, यस और नो? अगेन इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स. श्योर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इन्वेस्टमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत क्वेश्चन उठता है. सपोज वी हैव मेड इन्वेस्टमेंट. नाउ कम टू इन्वेस्टमेंट पार्ट. सर इन्वेस्टमेंट, आई हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. अब ये बताइए क्या ये 1 ईयर के अंदर में चेंज होगा कि नहीं होगा? यहां पे इन्वेस्टमेंट्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म का मतलब वी आर बेसिकली अ ट्रेडर. जैसे ही हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा वी विल सेल. वी हैव नॉट परचेज्ड इट विद द इंटेंशन ऑफ होल्डिंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म. तो ये हमारा करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. तो अगेन इट विल गो टू करंट एसेट्स. अब यही हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए अगर कुछ खरीदे हैं, इफ यू हैव परचेज्ड एनीथिंग फॉर लॉन्ग टर्म, बेसिकली आई हैव परचेज्ड आईटीसी एंड आई एम गोइंग टू सेल इट आफ्टर 5 years. तो मेरा इंटेंशन 1 ईयर के लिए कि मोर देन 1 ईयर? मोर देन 1 ईयर. सर इट विल बिकम लॉन्ग टर्म. तो इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ बेसिकली नॉन करेंट एसेट्स. नॉन करेंट एसेट्स. नाउ आई हैव यूज्ड द वर्ड नॉन करेंट एसेट. बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद एसेट्स को सर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स. ऑल द फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स आर बेसिकली बीइंग क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट्स. गॉट इट? तो आई एम सेइंग इट एज नॉन करंट एसेट. ये हमारा फिक्स्ड एसेट ही हो गया एक तरीके से. अगेन कम टू वन मोर आइटम, फर्नीचर. सर आई हैव परचेज्ड अ कंप्यूटर टेबल फॉर ऑफिस. ये कंप्यूटर टेबल क्या its life is only for 1 year? No sir, its life is more than 1 year. It can be 3 years, 5 years, 10 years, depends. So it will be treated as non-current asset or fixed asset. Got it? Again, we have purchased a motor car for the company, which is going to basically help the company in bringing basically in traveling purposes or bringing the managing director to the office and again dropping him to his home. So in that case this motor car, it will be treated as current asset or fixed asset? Sir fixed asset. The life is more than 1 year. Correct? Sir we purchased the land. Again fixed asset. Building, फिक्स्ड एसेट्स. यस और नो? करेक्ट है. तो जहां पे भी ग्रेटर देन 1 ईयर का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि उसमें वो चेंज नहीं होगा एंड इट विल हेल्प मी इन जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर मोर देन 1 ईयर, तो इट विल बेसिकली बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. One is tangible and the other is intangible fixed assets. अभी तक जितना भी एग्जाम्पल दिया गया सर, ऑल आर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं सर? विच वी कैन सी, वी कैन टच. इनको सर हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. सर फर्नीचर कैन आई टच? यस सर. सर motor car can we touch? Yes. Land? Yes. Building? Yes. Plant and machinery? Yes. So they all are tangible fixed assets. Now come to the intangible fixed assets. Maybe you cannot see them, we can't see them, but they help us a lot. Example, goodwill of a business.
ITC, the brand value is very high. Yes or no? Now this goodwill, it helps ITC in earning more profit compared to its peers. आज मेरा कोचिंग है, I am charging a higher fees than all my basically competitors. बाकी जो लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं उनसे ज्यादा फीस है मेरा, बिकॉज आई हैव गॉट अ गुड रेपुटेशन, मेरा गुडविल हाई है तो हम ज्यादा फीस चार्ज करते हैं. तो गुडविल इज समथिंग विच हेल्प्स अ पर्सन इन अर्निंग मोर रेवेन्यू कंपेयर टू अदर पीपल इन द इंडस्ट्री. दैट इज वॉट. अगर कोई चीज 5,000 का है तो अगर आपका गुडविल है तो आप उसको 50,000 में भी बेच सकते हैं. शूज, रीबॉक, एडिडास, नाइकी, they all are examples of the brand image which they have created. Can we see goodwill? No sir. अच्छा, goodwill helps only for 1 year or a longer period of time? So longer period of time, so it is a fixed asset. In the same way, copyright, trademark, know-how, technological know-how, any research and development which we have done, and that process is basically going to help us in the long run. तो उस टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग यूज करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट से हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट होने वाला आने वाले 10-15 साल. These all are basically examples of intangible fixed assets. Got it? Any problem till now, please? Now sir, coming to the liabilities part, we need to discuss about that also. When we are talking about the liabilities भी दो टाइप की होती है. Again, current liabilities which will change very soon, basically less than 12 months. Non-current liabilities, it will not change soon enough. It's a longer period of time we have taken. Sir, what do you mean by liability? Basically, it is an obligation. We are under an obligation to pay back. To pay them, it becomes a liability. It is basically a claim against the organization or the entity, you can say. Claim है कि भाई इसको अब पैसा देना पड़ेगा. You need to pay for it. So in that case, it becomes a liability. It can be a current liability case or it can be a non-current liability thing. Sir, what do you mean by current liabilities? Current liabilities which changes frequently. Sir, we purchase raw materials from our suppliers on credit. So, sir, we need to make the payment to them, yes or no? Is it so we are going to make the payment after 5 years? Sir, we need raw materials frequently. अगर हम उन लोग को 5 years बाद पेमेंट करेंगे तो दे विल नॉट सप्लाई अस द रॉ मटेरियल्स, यस और नो? तो दे नीड टू बी मेड, वी नीड टू मेक द पेमेंट फ्रीक्वेंटली. तो इन दैट केस, सिंस वी नीड टू मेक द पेमेंट, तो दे आर ट्रीटेड एज पेएबल्स. वी नीड टू मेक द पेमेंट, इट्स ड्यू. एंड रॉ मटेरियल्स आर बेसिकली रिलेटेड टू आवर ट्रेड और ऑपरेशंस, तो दे आर कॉल्ड ट्रेड पेएबल्स, और यू कैन से देम एज क्रेडिटर्स. वहां डेटर होता है, यहां पे क्रेडिटर्स होता है. सेम वे, एनी अमाउंट विच वी हैव नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑल हैव टू बी पेड वेरी सून, यस और नो? 12 महीने के अंदर तो पेमेंट करना ही पड़ेगा. In that case, it will be treated as current liabilities. Getting it? Sir, tax payable to the government, income tax payable to government. Again, we have not made the payment. अगर payment हो जाता तो ये liability नहीं होती. Things which have already been paid, they cannot be treated as liability. Which we need to make the payment in future, for which they will be treated as liability. Got it? So in that case, tax payable to the government, is it so we are going to pay to them after 5 years, 6 years, 10 years? No sir, problem हो जाएगा. In that case, the tax payable to the government, it becomes a current liability. Got it? Now talking about the non-current liabilities, basically for a long period of time we have borrowed the money for a
long period of time, borrowed money for long period of time. हम लोग पैसा उठाए हैं मार्केट से for a longer period of time. In that case, it becomes a non-current liability. Got it? Now, example. सबसे पहला example आता है इसमें capital. What do you mean by capital? The amount. Capital is basically the amount borrowed from the owner, or you can say the proprietor word. अब हम इसको borrowed बोले हैं, स्टूडेंट इसको पढ़ता है the amount contributed by the owner. एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए. अब शुरुआत में पैसा सबसे पहले कौन लगाता है बिजनेस में? सर जी, द ओनर इटसेल्फ. नाउ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोल के एक कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी. इट सेज the business and owner are two different person. Business and owners are two different person. Business अलग है और owner अलग है. तो in that case दोनों अगर अलग अलग हैं, तो जब हम अपने बिजनेस में रुपया लगा रहे हैं तो I can't say ये मेरा बिजनेस है. Business is a separate entity. I am giving money to the business to start the operations, yes or no? So since I am giving money to the business to start the operations, so in that case the business is borrowing the money from me, yes or no? तो borrow जब कर रहा है तो business is under an obligation to repay the money to me, yes or no? तो उसको repay करना है बाद में. अच्छा, is it so he needs to repay the money right now? No sir. Capital, ये बिजनेस को स्टार्ट करने का पैसा है, तो ये पैसा बिजनेस में फिक्स हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है एक बार के लिए. एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम 4 years 5 years जब बिजनेस ग्रो करता है, देन वी कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बिजनेस. हम लोग तब पैसा निकाल सकते हैं. एंड ओनर इज नॉट गोइंग टू टेक बैक ऑल इट्स मनी, क्योंकि अगर हम अपना सारा पैसा निकाल लेंगे तो देन आई विल नॉट बी द ओनर ऑफ द बिजनेस. I will be nothing for the business. तो इस केस में ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए हुआ कि शॉर्ट टर्म के लिए हुआ? सर, इट इज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. टिल द बिजनेस इज देयर, कैपिटल विल बी देयर, एंड दैट कैपिटल इज बेसिकली द अमाउंट बोरोड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ओनर टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू एक्सपैंड अ बिजनेस. पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए, एंड देन अ फर्दर अमाउंट मे बी नीडेड टू एक्सपैंड द बिजनेस, or to cover for the losses which the business may have sustained by operating in this particular competitive environment. तो in that case this is called as capital. ये कैपिटल हो गया. सर, बाकी जो पैसा हम लोग लगाते हैं बिजनेस में उसको हम लोग लोन्स, डिबेंचर्स इसके रूप में बोलते हैं. तो why not sir we say the capital also as loan? Now these loans and debentures are basically the person who are providing money against loans and debentures. They are outsiders. They are not the owners of the business. And we need to distinguish between who is the owner and who is the outsider. Now we take a loan from a bank. Now when we take a loan from a bank, we basically take it for 5 years, 10 years, something, yes or no? So in that case, again, it is a very long-term thing. And we are under an obligation to repay back the loan, yes or no? In that case, it becomes our non-current liability. Got it? Non-current liability. On these particular loans and debentures, we need to make a payment every year.
हम लोगों को एवरी ईयर कुछ पेमेंट करना पड़ता है, एंड दैट पेमेंट इज कॉल्ड बेसिकली इंटरेस्ट, करेक्ट है। लेकिन हम जो पैसा लगाए हैं, जो कैपिटल के रूप में मेरा पैसा लगा है, माई मनी, इज इट सो द बिजनेस इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे द मनी टू मी? नो, in that case there is no interest involved on capital. The owner basically gets a part of profit in the form of or the total profit in the form of dividend. इनको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, only from profit. So when there is no profit, they cannot claim any dividend. They will have to wait till the business is basically earning or minting money or making profit. Till then, loans and debentures, क्या ये लोग रुकेंगे? No sir, we will have to provide them with interest. Now sir, आप अपने घर में पैसा लेते हैं, you borrow from your dad some money, assume. अब अगर आपके पास रुपया नहीं है, तो is it so the dad is going to compel you to return the money? No sir, he can wait. घर का पैसा है, बट यही पैसा अगर आप बैंक से लेते लो और आप रिपे नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू पे बैक द इंटरेस्ट, तो क्या बैंक चुप रहेगा? इज इट सो बैंक विल नॉट डू एनीथिंग? इट विल टेक एक्शन. तो इन दैट केस द बैंक विल मूव अहेड फॉर लिक्विडेटिंग और बेसिकली सेलिंग योर एसेट्स एंड रिकवरिंग इट्स हिज मनी बेसिकली. तो इसलिए आउटसाइडर को अलग से दिखाना जरूरी है. इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वेदर और नॉट देयर इज अ प्रॉफिट और नॉट. प्रॉफिट होगा तो भी देना है, प्रॉफिट नहीं भी होगा तो सर हम लोग को पेमेंट करना है. मतलब सर इट बिकम्स अवर फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज, एक्सपेंस. और क्योंकि ये एक्सपेंस हर साल लगेगा, एवरी मंथ एवरी ईयर लगेगा, तो दिस एक्सपेंस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस. Now you come to another word. What do you mean by revenue expenses? Revenue expenses sorry, are those expenses which have to be incurred every year, every month. Basically they are recurring nature. जो हर साल या हर समय लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस. We purchase raw material. Again it is an expense, yes or no? Now the purchase of raw material, sir, is it a capital expenditure or a revenue expenditure? Sir, capital expenditure which will be basically incurred once in few years. जो रेगुलर बेसिस पे होता है, रेकरिंग होता है, वो रेवेन्यू होता है. तो इंटरेस्ट हैज टू बी पेड एवरी ईयर, एवरी मंथ. In that case it becomes a revenue expenditure. Salary given to employees. Employee को सैलरी दे रहे हैं, सर is it a revenue or capital? Sir, it becomes our रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि एवरी मंथ सैलरी देना है. सर पेइंग रेंट एवरी मंथ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सेल ऑफ गुड्स, सर ये एवरी डे सेल होगा, यस और नो? क्योंकि एवरी डे सेल होगा तो इट बिकम्स रेवेन्यू इनकम. इट बिकम्स रेवेन्यू इनकम. तो हम लोग को यही चीज समझना है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और क्या रेवेन्यू इनकम है. गेटिंग इट?